ओम शांति शांति शांति. In previous class, we studied less about who isGhirand Muni, who is Chand Kapali. Raja Chand Kapali came his guru and he asked to give knowledge about Saptang Yoga, about Tattva Gyan. Then Mahasi Gherent given about knowledge of Saptang Yoga. They told there are 7 limbs in Gherent Saita. कौन कौन से है वो? तो फर्स्ट इज, इस शरीर को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? तो 7 तरीके हैं. कौन कौन से? 7 चैप्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं. वो है हमारे, फर्स्ट क्या है आपका? सटकर्म. फर्स्ट इज सटकर्म. सेकेंड आसन. फर्स्ट वी हैव टू प्यूरिफाई आवर बॉडी बाय द सटकर्मा. देन विल मूव फर्दर about asana for strengthening our physical body. Then we'll move further mudra and bandh. Mudra and bandh. Then 4 chapters is pratyahara. Pratyahar. 5th chapters pranayam. Everyone, you can remember this sequence: सटकर्म, आसन, मुद्रा एवं बंध, प्रत्याहार, then pranayam. Then 6th one is dhyana. Then 7th is samadhi. If you want liberation, we have to follow these steps, like Satkarm, purifying our body by internal, Asan, giving the strengthening to our body, Mudra for patience, Pratyahar, withdrawal from the senses, Pranayama for controlling our breath, Dhyana for meditation, and Samadhi for liberation. They explain about 7 limbs in Gherent Samhita: Satkarm, Asan, Mudra, Bandh, Pratyahar, Pranayam, Dhyan, and Samadhi. In Satkarma, we have already studied about Satkarma. How many types of Satkarma? Gherent Samhita, they explain about 6 types. First is Dhoti. Second is dhoti, then basti. Third is dhoti, basti, neti. Fourth, lolaki. Fifth is Sandeep ji, I remember, tratak. Sixth is कपाल भाती. तो घिरेंड मुनि जी ने 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई हैं. दे एक्सप्लेन अबाउट 6 टाइप्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, कि हम 6 तरीकों से अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हैं. धौती यानी कैसे आप कर सकते हैं? अपनी बॉडी को इंटरनल आप क्लीन करते हो, जिसमें आते हैं हमारे 4 types. Antardhoti, here you can see Antardhoti, Dantadhoti, Antardhoti, which means internal cleaning. Dantadhoti, head cleaning. Pridhoti, cardiac region cleaning. Then Moolasodhan, cleaning our anal region. Then further he explained about 4 types of अंतर्धोती. इसके बाद बताते हैं कि 4 प्रकार के अंतर्धोती हैं. वो कौन कौन से हैं?
वातसार, वारिसार, इट्स आल्सो कॉल्ड शंख प्रक्षालन। वारिसार क्रिया को हम क्या कहते हैं? शंख प्रक्षालन क्रिया भी कहते हैं। वहनीसार, इसे अग्निसार क्रिया भी कहा जाता है। फोर्थ क्या है हमारा? बहिष्कृत, रेक्टर क्लीनिंग। देन सेकेंड टाइप ऑफ धौती, दंत धौती, यानी हेड क्लीनिंग। दंतमूल, we have to clean our teeth by the yogic technique. जिह्वा, cleansing our tongue. कर्णरंध्र, ear. कपाल रंध्र, frontal sinus, यानी which means frontal region. Then third dhoti they explain about hrid dhoti, which means cardiac region. Danda, danda which means stick. By stick we have to clean our cardiac region. Danda. Vaman, we can clean our cardiac region by the Kunjal Kriya, Vyagra Kriya. Then Vastha Dhauti. Vastha Dhauti also remove कफ दोष, कुष्ठ की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। कौन? वस्त्र धोती। देन वी मूव फर्दर, दे एक्सप्लेन अबाउट सेकेंड सटकर्म, बस्ती। जल बस्ती, स्थल बस्ती। इन जल बस्ती we are using water. In asthal basti we are performing asthal basti in paschimottanasana. No need for water, just doing aswani mudra and performing like paschimottanasana and applying mudra in basti kriya. Neti, neti they explain jalaneti and sutraneti. In jalaneti we are using water. Sutraneti, cleansing our nostril through the thread. जलनेति में हम पानी का यूज करते हैं, सूत्रनेति में हम एक धागे का यूज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लौलिकी क्रिया बताई गई है, जिसे नौलिक क्रिया भी कहा गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लौलिकी क्रिया, मध्यमा, वामना, दक्षिणा। देन फोर्थ वन इज भ्रमर नौली। They explain only 3 types. It is another type, Brahmar Noli. Madhyama means middle churning our abdomen, यानी कि पेट को घुमाना है पीठ से। वामना यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ अपने पेट को जब हम मूव करते हैं। दक्षिणा जब हम अपने पेट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। भ्रमर, इसमें हम अपने पेट को अच्छे से मूव करते हैं। Tratak Kriya, they explain about only Tratak, not different types of Tratak. In English book, they given 2 types of Trataka according to Bihar School of Yoga. In Hindi, they didn't explain. They explain Bahiranga, Antaranga. Bahirang, cleansing our eye through the external object like flame, jyoti or any object. Antarang, focusing in our internal body. जब हम बाहर की तरफ किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं तो उसे कहते हैं बहिरंग त्राटक। जब हम अपने आंतरिक चीजों पर ध्यान देते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं या किसी प्रतिबिंब का ध्यान करते हैं, उसे कहते हैं अंतरंग त्राटक। After then they explain about Kapalabhati. There are 3 types of Kapalabhati. Vat karma, where we are using breathe. It's like Anulom Vilom. Vyut karma Kapalabhati, reverse. We are taking water through the nostril and comes out from the mouth. Vyut karma. In Shit karma, we are taking water through the mouth and it comes out through your nostril. These are 3 कपालभाति। वात कर्म जिसमें हम ब्रीथ को लेते हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम की तरह समझ सकते हैं। व्यूत कर्म जिसमें हम क्या करते हैं, नाक से पानी पीते हैं और अपने मुंह से निकालते हैं। शीत कर्म जिसमें हम क्या करते हैं, पानी अपने मुंह से पीते हैं और नाक से निकाल देते हैं। तो ऐसे हमने देख लिया
क्या देखा कि सत्कर्मों की टाइप्स बताए गए। टोटल सत्कर्म कितने हैं संदीप जी, पूजा जी, श्रुति जी, वैष्णवी जी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सत्कर्म? गैरेंट सहिता एक्सप्लेन। 6 प्रकार के षटकर्म है। टोटल टोटल 24 प्रकार के, 24 टाइप्स ऑफ षटकर्म। राइट है ना? 13 प्रकार की धोती, हम्म 2 प्रकार की बस्ती, हम्म 2 प्रकार की नेति, 3 प्रकार के नौली, हम्म 1 प्रकार का त्राटक और 3 प्रकार के कपालभाति। ठीक है, टोटल 24। टोटल हो गए हमारे 24। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे धोती। धोती क्रिया में अंतर्धोती, देन दंत धोती, फिर धोती एंड मूल शोधन। अंतर्धोती, देर आर 4 टाइप्स ऑफ अंतर्धोती। हियर वातसारम, वारिसारम, वहिनीसारम, बहिष्कृतम, घटस्थ, निर्मल, अर्थाय, फ्री, अंतर्धोती चतुर्विधा। 4 टाइप्स ऑफ अंतर्धोती। Then today we'll discuss about वातसार अंतर्धोती। अभी हम डिस्कस करेंगे वातसार अंतर्धोती। काकचंचु वदासेन पिबेद वायुम सनेर सनेर, चाल एद उदरम पश्चात पश्चात मान रेचएत छने। क्या कहते हैं? शेपिंग द लिप्स लाइक अ क्रो विक, स्लोली स्लोली suck in as much as possible, circulate it inside the abdomen and then gradually expel it completely। तो घिरेन मुनि जी क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं कि कौवे की चोंच के समान दोनों ओठों को करके सने सने धीरे धीरे वायु को पिए, देन पूर्ण रूप से पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन करें, फिर उस वायु को निकाल दें। तो हमें क्या करना है? कौवे की चोंच की तरह अपने मुंह को बनाना है। काकचंचू की तरह आपको अपने मुंह को बना लेना है। देन इसके बाद क्या करना है? वायु का पान करना है। देन आपको क्या करना है? अपने पेट को अच्छी प्रकार से एयर से भर लेना है। यू हैव टू फुलफिल योर एब्डोमेन बाय द एयर। फिर आप क्या करोगे? फिर पेट को चलाना है। इसके बाद आपको उस एयर को बाहर निकाल देना है। यू हैव टू एक्सपेल इट कंप्लीटली। तो ये बताया गया आपका वातसार अंतर्धोती। तो बेनिफिट क्या बताया गया है कि वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम। गणेश मुनि जी एक्सप्लेन। वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, सर्वरोग क्षयम करम, देहान विवर्धकम। वातसार is a very secret technique for purifying the body. It destroys all disease and activates the gastric fire, which helps to digest food। करण मुनि जी कहते हैं कि वातसार क्या है? एक अत्यंत गुप्त क्रिया है, किसी को दिखाना नहीं है, आपको गुप्त यानी रहस्य तरीके से आपको करना है। जब आप वातसार क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है? देह को निर्मल बनाता है। क्या करता है? बॉडी को प्यूरिफाई करता है। एंड डिस्ट्रॉय ऑल द डिजीज, और सभी प्रकार के रोग को नष्ट कर देता है। और क्या करता है? इंक्रीज गैस्ट्रिक फायर, ये हमारे गैस्ट्रिक फायर को इंक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक फायर को क्या करता है जी? इंक्रीज कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें बताया गया है कि देह निर्मल कारकम, शरीर को निर्मल बनाता है। सर्व रोग क्षयम करम, सभी रोगों का क्षय कर देता है। फिर क्या बताते हैं? देहान नल विवर्धकम, और शरीर की अग्नि को बढ़ाता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रख लेनी है। ठीक है जी, ऐसे आपको सारी चीजें
ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि कौवे की चोंच की भांति मुख करके धीरे धीरे वायु का पान करना है। फिर इस वायु को कुछ समय के लिए चलाना है, पेट को चलाना है। फिर इसके बाद वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। वातसार क्या है? परम गोपनीय है। आपको ध्यान रखना है कि वातसार क्या है? परम गोपनीय है, गोपनीय है। और क्या कहता है? देह को निर्मल बनाता है, प्यूरिफाइंग द बॉडी। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? देहान ल विवर्धकम, देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो 3 बेनिफिट आपको मिल गए। पहला बेनिफिट क्या है कि देह को निर्मल बनाता है, प्यूरिफाइंग द बॉडी। सेकेंड, सभी रोगों का नाश करता है। थर्ड, देह की अग्नि को बढ़ाता है। क्लियर? तो आपको टू द पॉइंट सारी चीजें ऐसे ही याद रखनी है। फिर बताते हैं वारिसार अंतर्धोती। वारिसार अंतर्धोती क्या है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो कहते हैं आकंठम पूरयेद वारी वक्त्रेण च पिबेत शनैः चालयेद उदरेणैव च चोद च उदरो द्रेयेदः वारिं वारिसारं परम गोप्यं देह निर्मल कारकं साधयेत प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते। कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर स्लोली थ्रू द माउथ अप टू द थ्रोट, आपको धीरे धीरे पानी को पीना है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर स्लोली एंड फील द वाटर अप टू द थ्रोट रीजन। देन एब्डोमेन इज देन मूव्ड एंड द वाटर इवैक्यूएटेड थ्रू द एनस। इसके बाद क्या करना है? आपको पेट को घुमाना है, फिर आपको एनस से पानी को निकाल देना है। द टेक्निक ऑफ वारिसार धोती इज मोस्ट सीक्रेट। ये क्या है? सीक्रेट है। हर एक धोती क्रिया क्या है? सीक्रेट है। फिर कहते हैं कि अयोगी हु इट प्यूरिफाई द बॉडी, ये हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है। अयोगी हु परफेक्ट दिस टेक्निक अटेन अ डिवाइन बॉडी, जो योगी इस अभ्यास को अच्छी तरीके से कर लेता है उसे क्या मिलता है? देवदेहम, देवता के समान शरीर मिल जाता है। तो एक बार हम हिंदी में देखते हैं कि क्या घेरन मुनि जी कहते हैं। कहते हैं कि मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक आपको भर लेना है। फिर उसके बाद पेट को चलाना है। फिर अधोमार्ग यानी कि आपको अपने एनस रीजन से पानी को निकाल देना है। इसे क्या करना है? प्रयत्न पूर्वक करना है, जो कि बॉडी को देवता के समान बना देता है। तो आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, शरीर देवता के समान दिव्य बन जाता है। देह निर्मल कार्यकम, ठीक है जी। और देव देहम, शरीर को तो निर्मल करता ही है, प्योरीफाई तो करता ही है। और दूसरा क्या करता है? देव देहम, देवता के समान शरीर को बना देता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको अपने शॉर्ट नोट में लिखते जाना है। तो हमने 2 धौती क्रिया देख ली अंतर्धौती के अंतर्गत। पहला हमने क्या देखा? वातसार, जिसमें हमने क्या किया? जिसमें हमने काकचंचू, हमने कौवे की चोंच के समान बनाया अपने मुख को। फिर हमने धीरे धीरे पानी को पिया, वी ड्रिंक स्लोली। फिर इसके बाद आपने पेट को मूव किया, पेट को चलाया। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपने रेचन कर दिया, यानी कि एक्सपेल कर दिया वायु को। तो वातसार क्या था? परम गोपनीय था। फिर इसके बाद देह को निर्मल बना रहा था, क्या? वातसार धौती। फिर सभी रोगों को नष्ट किया उसने, डिस्ट्रो ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज। देन देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो 3 आपको बेनिफिट मिल गए। फिर इसके बाद वारिसार धौती में हमने क्या किया? कंठ तक पानी पिया, वी ड्रंक वाटर अप टू द थ्रोट रीजन। फिर हमने क्या किया? पेट को चलाया, एब्डोमेन को हमने मूव किया। फिर इसके बाद आपने क्या किया? पानी को अधोमार्ग से निकाल दिया।
क्या किया आपने? वाटर को इवेक्यूएट किया थ्रू द एनस रीजन, इट्स कॉल्ड वारिसार धोती। वारिसार धोती को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वारिसार धोती को संघ प्रक्षालन क्रिया भी कहा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो वारिसार के दूसरे नाम क्या है? संघ प्रक्षालन क्रिया। अब क्वेश्चन आता है कि संघ प्रक्षालन क्रिया है क्या? जैसे आपने संघ को देखा होगा, ठीक वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 23 है। रॉन्ग 22 फुट है ना, 22 फीट हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है, जो कि शंख की अच्छा। तरह क्या है, घूम घूम कर हमारे इस छोटे पेट में है। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, संघ प्रक्षालन क्रिया से हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। जैसे आप वस्त्र धोती करते हो तो सिर्फ आप अपर ट्रैक को ही क्लीन कर पाते हो, लेकिन जब हम संघ प्रक्षालन क्रिया करते हैं तो इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से हम क्लीन करते हैं। तो संघ प्रक्षालन क्रिया में कौन कौन से आसन के अभ्यास हम करते हैं? वी आर परफॉर्मिंग 5 टाइप्स ऑफ आसना व्हेन वी आर डूइंग संघ प्रक्षालन क्रिया। वो कौन कौन से आसन हैं? संदीप जी, पूजा जी। सर ताड़ासन, ताड़ासन, 5 आसन है सर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जी। कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और वेरी उद्रासन सर। ठीक है, उदर आकर्षण आसन। ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आसना। देयर आर 5 टाइप्स आर आसना व्हेन वी आर परफॉर्मिंग संघ प्रक्षालन क्रिया। कौन कौन से? वो ताड़ासन, TTKTU, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण आसन। You can see here by the picture, this is Tadasana, Tiryak Tadasana. Then this is called Kati Chakrasana. Third one. Fourth one is Tiryak Bhujangasana, when we are twisting in Bhujangasana, twisted pose. After then Udrakarshan Asan. This is Udrakarshan. वैष्णवी जी, आपको याद हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसना इन संघ प्रक्षालन? हाँ जी सर। कौन कौन से हैं जी? 5 टाइप्स का है। देखिए क्या है? ताड़ासन, पाम ट्री पोज। देन तिर्यक ताड़ासना, स्वेइंग पाम ट्विस्टिंग पोज। देन चक्रासना, वेस्ट ट्विस्टिंग पोज। आफ्टर दैट वी हैव कटी चक्र, तिर्यक भुजंगासना, ट्विस्टिंग कोबरा पोज। उद्राकर्षण, एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज। तो अभी आपने 5 टाइप के आसन देख लिए जब आप संघ प्रक्षालन क्रिया करते हैं। तो संघ प्रक्षालन करते हैं, इस जो हमारी इंटेस्टाइन है एक संघ की तरह है, उसको हम क्लीन कैसे करते हैं? इन 5 आसनों को करके। तो आपको क्या करना है, पहले आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें हल्का नमक डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उन्हें भी संघ प्रक्षालन क्रिया नहीं करनी है जिन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, या छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना घाव की तरह हो अंदर, तो आपको नहीं करने हैं। फोड़े फुंसी की तरह हो तब भी आपको गर्म पानी नहीं पीना है। तो संघ प्रक्षालन क्रिया आपको इग्नोर करनी है। तो हमारी थर्ड क्रिया है अंतर्धोती में, अग्निसार अंतर्धोती, एक्टिवेटिंग द डाइजेस्टिव फायर, जिसमें हम अपने पेट की अग्नि को बढ़ाते हैं। अग्नि जो हमारा सार तत्व है, अग्नि तत्व, उसे बढ़ाना है आपको, पाचन शक्ति को बढ़ाना है, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करना है। अग्निसार के बारे में जानेंगे हम। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वारम चकारयेत अग्नि सारम इयं धौतिर्योगिनां योग सिद्धिता उदरा यजम त्वक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत एषा धौति परा गोप्या देवानामपि
दुर्लभा केवलम धौति मात्रेण देह देवम भवे ध्रुवम। तो अग्निसार क्रिया में हम क्या करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे टेक्निक बताई गई है। रिटेनिंग प्राणवायु, प्राणवायु को रोक करके पुल द नेवल अगेंस्ट स्पाइनल कॉलम 100 टाइम्स। हमें क्या करना है, प्राणवायु को रोकना है, फिर नाभि को मेरु पृष्ठ से लगाना है, और इसके बाद 100 बार आपको सत्वारम चकारेत 100 बार आपको चलाना है। वी हैव टू मूव 100 टाइम्स आवर एब्डमन। इससे क्या होगा, इससे सभी उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। डिजीज ऑफ एब्डमन आर रिमूव्ड, जितने भी हैं, एंड डाइजेस्टिव फायर इज स्टिमुलेटेड, और हमारे पेट की जठराग्नि बढ़ती है जब हम 100 बार इस क्रिया को करते हैं। यह धोती क्या है, गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है जी, इसे आपको सीक्रेट में रखना है, मोस्ट सीक्रेट है। अननोन इवेंट टू द डिवाइन बीइंग, क्या है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी इसे पा नहीं सकते। केवलम धौति मात्रेण देव देहम भवे ध्रुवम। तो अग्निसार क्रिया को कैसे करना है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो बताते हैं कि अग्निसार क्रिया में नाभि ग्रंथि को 100 बार आपको मेरु पृष्ठ से लगाना है। ठीक है, और अग्निसार जो धौति क्रिया है योगियों को सिद्धि देता है। तो इसके बेनिफिट आपको अभी मालूम हो जाएंगे। योगियों को सिद्धि देने वाला कौन सा क्रिया है, तो अग्निसार क्रिया जो है वो योगियों को सिद्धि देता है। योगी सिद्धिता, योगी सिद्धता, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, योग सिद्धता। आपको नोट डाउन करना है कि योगियों को सिद्धि देने वाली वो क्रिया कौन से है, तो वह है हमारी अग्निसार धौति। फिर क्या करती है, देवदेहम भवे ध्रुवम धौति मात्रेण। फिर बताते हैं कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी इसको पा नहीं सकते, बहुत कठिन है। और केवलम धौति मात्रेण देव देहम भवे ध्रुव, सिर्फ धौति क्रिया से, कौन सी धौति क्रिया, अग्निसार क्रिया से आप देवताओं के जैसे शरीर पा सकते हैं। यू हैव टू गेट बॉडी लाइक अ डिवाइन। तो आपने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे, अग्निसार धौति में सतवारम 100 बार आपको अपने मेरु पृष्ठ को चलाना है। फिर जो अग्निसार धौति है वो क्या है जी, योगियों को सिद्धि देती है। दूसरा बेनिफिट, एक बेनिफिट ये हो गया, योगियों को सिद्धि देती है, 100 बार इसे चलाना है। फिर इसके बाद क्या है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, दे कांट गेट। ठीक है जी। और फिर बताते हैं कि जब आप अग्निसार क्रिया करते हैं तो आपका जो शरीर है वो देवताओं जैसा हो जाता है। तो आपने नोट डाउन कर लिया पूजा जी, श्रुति जी, जी सर। भरत जी, मोनालिसा जी, वेरी गुड। अभी आपको नोट डाउन करना है। पहला क्या है, उदर के रोग को दूर करती है। दूसरा क्या है, जठराग्नि बढ़ाती है। तीसरा क्या है, परम गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और अग्निसार क्रिया से आप देवताओं जैसा शरीर पा सकते हैं। तो अभी हमने 3 धौति पढ़ ली। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अभी ये आया था 18 जून 2024 को, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि घृण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस योग अभ्यास में नाभि को मेरु दंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है तथा जो उदर विकार के लिए लाभदायक है। इन घृण, वारिसार सर, हाँ, अग्निसार क्रिया ना, अग्निसार, वेरी गुड। यहाँ वारिसार, पे कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार और उज्जाई। तो आपको क्लिक करना है अग्निसार धौति। अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे। अभी आपने जो पढ़ा है
तीनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, आप अभी देखेंगे जी। तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं तीनों को। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? वातसार, दूसरा हमने पढ़ा वारिसार, और तीसरा हमने पढ़ा अग्निसार, जिसे हम क्या कहते हैं? वहिनीसार क्रिया भी कहते हैं। वातसार के आपने बेनिफिट क्या देखे? इससे बताया गया है कि परम गोपनीय है, यानी कि ये सीक्रेट है। गोपनीय है, ये क्या है? परम गोपनीय है। फिर दूसरा आपने क्या देखा? कि देह को निर्मल बनाती है, प्यूरिफाइंग द बॉडी, निर्मल बनाती है। तीसरा आपने देखा वातसार में सभी रोगों का नाश करती है, डिस्ट्रॉय ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, सभी रोगों का नाश करती है, सभी रोग क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं। चौथा आपने देखा था वातसार में देह की अग्नि को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द डाइजेस्टिव फायर, देह की अग्नि को बढ़ाता है। वारिसार धोती में आपने देखा कि वारिसार क्या है? परम गोपनीय है, ये भी क्या है? सीक्रेट में है। और सेकेंड आपने क्या देखा? कि देह निर्मल, देह को निर्मल बनाती है। थर्ड आपने क्या देखा? देवता के समान आपका शरीर दिव्य हो जाता है, देवता के समान दिव्य हो जाता है। और हमने अग्निसार क्रिया में क्या देखा? कि उदर के रोग दूर होते हैं, यानी कि एब्डोमेन संबंधित जितने भी बीमारियां होती है वो दूर होती हैं, उदर के रोग दूर होते हैं, सेकेंड आपने क्या देखा? कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि क्या है? जठराग्नि बढ़ती है। फिर क्या है? परम गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और देवताओं के समान क्या हो जाता है? शरीर हो जाता है यदि आप अग्निसार क्रिया करते हैं। ठीक है जी, परम गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ किन के लिए है? देवताओं के लिए। और क्या होता है कि देवता जैसा शरीर बन जाता है, देवता जैसा शरीर बन जाता है। जी वैष्णवी जी, वातसार के बेनिफिट आप बता दीजिए, जो अभी मैंने लिखा है कि परम गोपनीय है, देह को निर्मल बनाता है, इट्स सीक्रेट, प्यूरिफाइंग द बॉडी, डिस्ट्रॉय ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, इंक्रीजिंग द डाइजेस्टिव फायर। वारिसार धोती क्या है? ये भी परम गोपनीय है, सीक्रेट इसको भी रखना है, प्यूरिफाइंग द बॉडी, आवर बॉडी बिकम्स लाइक अ डिवाइन ह्यूमन बींग, डिवाइन बींग। ठीक है। अग्निसार क्या है? इट डिस्ट्रॉय ऑल टाइप्स ऑफ disease related to abdomen, increase digestive fire. We have to practice in secret region. Agnisar kriya is difficult for gods. If you practice Agnisar kriya, then your body become like divine, like gods. ठीक है जी। तो हम अग्निसार क्रिया सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर 1 में और फिगर 2 में। और यहाँ पे फिगर 3 दिया हुआ है टेक्निक 2, जिसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। आप जब अपने पाम को अपने नी पे रखते हैं और नी को हल्का सा फोल्ड करते हैं और बैंड करके नौली अग्निसार क्रिया करते हैं, एब्डोमेन को आप 100 बार फ्लैप करते हैं। फिर है बहिष्कृत अंतर्धौती। तो काकी मुद्रायाम सोदयित्वा पूरयेद उदरम मरुत धारयेत अर्धयामम तु चालयेद वर्तमना एषा धौती परा गोप्याम न प्रकाश्या कदाचना।
तो बताते हैं कि बहिष्कृत धोती में आपको क्या करना है कि कौवे की चोंच के समान ओठों को करके उनके द्वारा वायु पान करते हुए पेट को भर लें। आपको क्या करना है, कौवे की चोंच के समान ओठों को बनाना है, फिर इसके बाद जो आप एयर को पी रहे हैं उसको पेट में भर लेना है। ठीक है जी। इसके पहले आपने काक चंचू कहाँ देखा था, वहां पे काक चंचू दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है काकी मुद्रा बहिष्कृत में, वात्सार में आपने देखा था ना। तो फिर क्या है, जब आपने कौवे की तरह चोंच बनाया मतलब ओठ बनाया और आपने एयर को पिया, फिर आपको अर्धयाम यानी कि आधे पर 1.5 घंटे तक आपको एयर को पेट में ही रोक कर रखना है। फिर आपको क्या करना है, पेट को चलाना है। वी हैव टू मूव आवर एब्डोमेन देन रिमूव थ्रू द एनस रीजन। आपको इसके बाद अधोमार्ग से रिलीज कर देना है। ये क्या है, परम गोपनीय है बहिष्कृत धोती। आपको देखना है कि क्या क्या चीजें बहिष्कृत धोती में बताई गई हैं। तो कौवे की इसके समान ओठों को बनाना है, फिर इसके बाद वायु का पान करके वायु को 1.5 घंटे के लिए अपने पेट में रोकना है, फिर इसके बाद आपको अधोमार्ग से निकाल देना है। ये क्या है, परम गोपनीय क्रिया है। और इसी में आपको नाड़ी प्रक्षालन यानी प्रक्षालन कर्म के बारे में भी बताया गया है। कहाँ पे, बहिष्कृत धोती में ही। ये तो नहीं था, कौवे की चोंच के समान हमने ओठ बनाया और वायु को हमने पिया और पेट में भर दिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, 1.5 घंटे तक, ये आपको ध्यान रखना है, वायु को कब तक रोकना है, अर्धयाम यानी आधे पहर तक 1.5 घंटे तक वायु को रोकना है। अर्धयाम आपको ये ध्यान रखना है, किसमें, बहिष्कृत धोती में हम एयर को 1.5 घंटे तक रोकते हैं, अर्धयाम। ठीक है जी, 1.5 घंटे तक हम रोकते हैं। फिर क्या है, ये परम गोपनीय है और इसे आपको किसी को बताना नहीं है। और इसी में आता है नाड़ी प्रक्षालन क्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, नाभि तक जल में बैठ जाते हैं, फिर अपनी जो हमारी शक्ति नाड़ी उसको बाहर निकालते हैं। फिर आपको क्या करना है कि दोनों हाथों से उसे साफ करना है। साफ तब तक करना है जब तक कि मल साफ न हो जाए। फिर आपको क्या करना है, साफ होने के बाद नाड़ी को फिर से अंदर की तरफ लेकर जाना है। यह भी क्या है, परम गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। क्या है, नाड़ी प्रक्षालन क्रिया, आप यहाँ पे अभी देखेंगे। बहिष्कृत धोती, हाँ, नाड़ी प्रक्षालन क्रिया आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाभि मग्ने जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जयेत। हमें क्या करना है, नाभि तक जल में खड़े रहना है। फिर इसके बाद हमें अपने शक्ति नाड़ी को बाहर निकालना है, फिर उसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जब तक वो साफ ना हो जाए तब तक आपको साफ करना है। फिर इसके बाद आप क्या करना है, उसे अंदर की तरफ वापस वहीं पे रख देना है। ये क्या है, प्रक्षालन कर्म है, जो कि बहुत ही गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है जी, देवताओं के लिए दुर्लभ है। और क्या बताया गया है कि दुर्लभ तो है ही, फिर कहते हैं नाभि अग्न जले स्थित्वा ना शक्ति नाड़ी विसर्जयेत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से, ये है आपका नाभि मग्ने जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जयेत। ये कहाँ बताया गया, बहिष्कृत धोती में, तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं कि किस प्रकार से बताया गया है प्रक्षालन कर्म। तो यहाँ बताया गया है कि स्टैंडिंग इन वाटर अप टू द नेवल रीजन, पुश आउट द रेक्टम शक्ति नाड़ी एंड वॉश इट, रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट व्हेन द नाड़ी इज क्लीन, ड्रॉ इट अगेन। दिस क्लींजिंग practice of dhoti is very secret. It is not even accessible to the god. Just by the practicing this dhoti, one attained like body like a divine being. It is not possible to practice बहिष्कृत महाधोती। इसे क्या कहा गया है, महाधोती कहा गया है। किसे, प्रक्षालन कर्म को ही महाधोती
की संज्ञा दी गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बार रिकॉल करते हैं कि अभी आपने क्या क्या चीजें बहिष्कृत धोती में सीखा जी। तो अभी बताएंगी श्रुति जी। श्रुति जी, आपने बहिष्कृत धोती में क्या सीखा अभी, कैसे कर बहिष्कृत धोती? जी सर, बहिष्कृत धोती में काक की मुद्रा, क्रो बीक की तरह हम मुद्रा बनाएंगे। वायु को पीना है, फिल द स्टमक एंड देन मूव द एब्डोमेन, और फिर वी रिलीज इट थ्रू द एनस। आई फॉरगॉट द संस्कृत वर्ड सर, उसके लिए क्या था? घुदादार था क्या? हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ या सो आफ्टर दैट ये भी लिखा था कि हाफ यम, दैट इज 1.5 आवर्स के, अर्धयाम। हाँ याम अर्धयाम के लिए 1.5 आवर्स जो होता है, हमें वायु को रोक के रखना है। और फिर नाड़ी प्रक्षालन क्रिया भी बोला गया है यहाँ पे, जिसमें हम क्या बोल शक्ति नाड़ी को बाहर निकाल के उसको बहुत साफ करते हैं। जी सर, वी हैव टू क्लीन इट, जब तक साफ नहीं हाँ होगा हाँ क्लीन इट, हाँ उसको साफ करते हैं पानी में, और फिर शक्ति नाड़ी को वापस से वी पुट इट बैक इनसाइड। आई थिंक शक्ति नाड़ी इज द रेक्टम को जो बोलते हैं इन इंग्लिश। यस यस। फिर हाँ, फिर बोला गया कि दिस इज परम गोपनीय और दुर्लभ टू द देवतास ऑल्सो, और प्रक्षालन कर्म को महादौती भी कहा गया है। वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारी धोती है दंत धोती। दंत धोती के हमने कितने टाइप्स देखे थे? हाउ मेनी टाइप्स आर दंत धोती? वी हैव अर्लियर स्टडी देयर आर 5 टाइप्स सर दंत धोती। 5। दंत धोती कौन कौन से? दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। दंत मूल 1, जीवा मूल 1, कर्ड राइट एंड लेफ्ट, देन कपाल रंध्र। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दंत धोती। ठीक है जी। तो दंत मीन्स क्या है? सफाई, क्लीन किसे करना है? दांतों को क्लीन करना है। इसका मीनिंग तो यही आता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। शीर्ष प्रदेश की सफाई, यानी कि हम अपने अपर बॉडी को क्लीन करते हैं, जो हमारा हेड रीजन है। और दंत धोती किसका काम करता है? ईएनटी का काम करता है। ईएनटी यानी कि ईयर, नोज और टंग का काम करता है, इन तीनों को क्लीन करता है। तो क्या बताया गया है दंत धोती कि देयर आर 5 काइंड ऑफ दंत धोती। फर्स्ट इज दंत मूल, क्लिंजिंग द टीथ। जीवा मूल, क्लिंजिंग द टंग। कर्णरंध्र, क्लिंजिंग द 2 ear, right and left. कपाल रंध्र, क्लिंजिंग द upper region of the head. These are 5 types of दंत धोती। First we have to study दंत मूल। दंत मूल में क्या बताया गया है अभी आप देखेंगे। खादीरेण रसेनाथ शुद्धिम अतिकया तथा मार्जयेत दंत मूलम च यावत् किल्मिषं माहरेत। दंत मूलम पराधौतीर योगिनां योग साधने नित्यं कुर्यात् प्रभाते च दंत रक्षास योगविद। दंत मूलम धावनादिकारेषु योगिना मतम। तो दंत मूल धोती में हम क्या करते हैं? कहते हैं कि जब तक मैल ना छूटे तब तक खादीर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मार्जन करना चाहिए। ठीक है जी। फिर क्या बताते हैं? योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि मोस्टली लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं अपने दांत को क्लीन करने के लिए, लेकिन एंशियंट टाइम में खादीर के रस का प्रयोग करते थे। किसे क्लीन करने का के लिए? अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, जो टीथ का रूट है उसको क्लीन करने के लिए।
किससे? खादीरेण रसेनाथ। खादीर की रस या तो विशुद्ध मिट्टी का यूज करते थे उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए। ठीक है जी। तो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं? खादीरेण रसेनाथ शुद्ध मिट्टिकया तथा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। खादीरेण रसेनाथ शुद्ध मिट्टिकया, यानी कि दंत मूल धोती में हम खादीर के रस का यूज करते हैं, मिट्टी को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दंत मूल धोती में खादीर के रस का यूज करते हैं, या तो विशुद्ध मिट्टी को हम यूज करते हैं अपने दांतों का मार्जन करने के लिए, दांतों को क्लीन करने के लिए। फिर कहते हैं कि दंत मूल क्या है? दंत मूल पराधौती योगिना योग साधने। दंत मूल क्या है? पराधौती है योगियों के लिए। फिर क्या बताते हैं कि दंत रक्षाय योग साधने नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षा योगिनम। जब आप डेली खादीर के रस और शुद्ध मिट्टी से अपने दांतों की सफाई करते हैं तो क्या होगा कि आपके दांतों की रक्षा होगी। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट श्लोक में क्या ध्यान रखना है कि खादीरेण, दंत मूल में हम क्या करते हैं? खादीरेण रसेनाथ शुद्ध मिट्टिकया तथा, दंत मूल में हम खादीर के रस का प्रयोग करते हैं या तो शुद्ध विशुद्ध मिट्टी से हम दांतों को मार्जन करते हैं, जिससे कि दांतों की रक्षा होती है। और दंत मूल धोती को प्रमुख क्रिया माना गया है। ठीक है जी, योग साधक इसे प्रमुख कर्म मानते हैं। किसे? दंत मूल धोती को। फिर इससे क्या होगा कि दांतों की रक्षा होती है। सिर्फ आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है ना दंत मूल में हम खादीर के रस का यूज करते हैं, बस इतना ही याद करना है। और क्या याद करना है कि योगी जन जो है, जो योग साधक हैं, दंत मूल को प्रमुख मानते हैं, प्रमुख कर्म मानते हैं। आपको डेली इस कर्म को करना है और ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। डीप में जाना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप इसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी, तो हम सारी चीज़ें सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। डीप नॉलेज लेनी है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? जीवाशोधन, यानी कि हम कैसे अपने जीव को शुद्ध करेंगे। हाउ वी विल क्लीन आवर टंग। तो बताते हैं अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वाशोधन कारणम जरा मरण रोगादीन दीर्घलंबिका। तो बताते हैं अब जीवा शुद्धि का कारण बताते हैं। यह दीर्घलंबिका का लाने वाली प्रयोग है जो कि जरा मरण और रोगों का नाश करती है। तो आपको ध्यान देना है कि जीवा शोधन क्या है। जीवा शोधन को दीर्घलंबिका कहा गया है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जीवा शोधन को दीर्घलंबिका कहा गया है। और इससे क्या होता है? जरा मरण का नाश होता है, जरा मरण का नाश होता है, प्लस रोगों का भी नाश कर देता है। बस आपको इतना एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बताते हैं कि जीवा शोधन आप कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है कि जीवा शोधन करते हुए आपको 3 उंगलियों को यूज करना है। When you are performing जीवा शोधन, we have to apply your 3 fingers, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। तर्जनी क्या है हमारा? इंडेक्स फिंगर। मध्यमा क्या है? मिडिल फिंगर। और इसके बाद क्या है जी हमारा? अनामिका, जो कि है हमारा रिंग फिंगर। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। कौन कौन से? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर। ऐसे आपको अपने जीवा का मार्जन करना है, जीवा को अच्छी प्रकार से रब करना है। फिर क्या बताते हैं कि आपको डेली मार्जन करना है। इससे कफ दोष का नाश होता है। किससे कफ दोष का नाश होता है? जीवा मूल से कफ दोष का नाश होता है। ये बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवा
मूल धोती से कफ दोष का नाश होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, इसके बाद नवनीत यानी मक्खन से आपको क्या करना है, जीवा को बार बार दोहन करना है। आपने मक्खन लिया और टंग को मालिश करनी है, मसाज देनी है। वी हैव पुट मक्खन ऑन आवर टंग एंड डू रबिंग डेली। मार्जयेन वनितेन दोहेच्च पुनः पुनः, बार बार आपको दोहन करना है। फिर आप क्या करोगे, तदग्र लोह यंत्रेण कर्षित्वा सने सने, फिर आप क्या करोगे कि अपने टंग को दोहन करने के बाद लोहे की चिमटी से जीभ को आपको पकड़ना है और बाहर खींचना है। फिर आपको कैसे कैसे करना है आपने देख लिया। आपको अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को लेना है और आपको मार्जन करना है, मसाज करना है अपने टंग को। कर लिया। इसके बाद आपको अपने टंग को पकड़ना है, उसमें मक्खन अप्लाई करनी है और मसाज देनी है। इसके बाद आपको लोहे की चिमटी लेनी है, टंग को पकड़ना है और बाहर की तरफ खींचना है। कब कब करना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद इस प्रैक्टिस को करना है, डेली करना है। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि जब आप डेली करोगे किसका, जीवामूल का, तो इससे क्या होगा कि कफ दोष का नाश होता है और खेचरी की सिद्धि भी होती है। किससे, जीवामूल धौती से कफ दोष का नाश होता है और खेचरी की भी सिद्धि होती है। कब कब करना है, सनराइज के टाइम और सनसेट से पहले आपको इस प्रैक्टिस को करना है। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, इसका मंत्र क्या है, नित्यम कुर्याद प्रयत्नेन, फिर क्या है, रवेरुदके तकम, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका हो गया नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन रवेद उदय के स्तकम। तो कैसे करना है आपने देख लिया। जीवामूल धौती कैसे करते हैं, तर्जनी, अनामिका और मध्यमा 3 उंगली का यूज करना है और आपको मार्जन करना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मक्खन लेना है, मक्खन लेकर के जीभ को रब करना है, उसका दोहन करना है। दोहन करने के बाद आपको चिमटा लेना है लोहे का, फिर धीरे धीरे अपने जीवा को, टंग को बाहर खींचना है। कितनी बार करना है, एक सुबह करना है, सनराइज के टाइम करना है, और दूसरा आपको करना है सनसेट के टाइम। इससे क्या होगा, कफ दोष का नाश होता है, डिस्ट्रॉय कफ दोषा। ठीक, आगे चलते हैं। कर्णरंध्र धौती यानी कि क्लीनिंग द ईयर, अपने ईयर को क्लीन करना। तो कैसे करना है तो बताते हैं कि अपने ईयर को क्लीन करने के तरीके बताते हैं। तर्जन्य अनामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रयो नित्यम अभ्यास योगेन तदांतरम प्रकाशयेत। तो इसमें आपको अप्लाई करना है अपने फिंगर्स को, तर्जनी और अनामिका। तो तर्जनी और अनामिका कौन कौन से फिंगर है, कोई बता सकता है? इंडेक्स और रिंग फिंगर। आपको अपने इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर ले लेना है। ठीक है जी। अब आपको एक दूसरे को टच करना है और अच्छे से आपको इस प्रकार से अपने कान की सफाई करनी है। ये क्या है, कर्णरंध्र धौती। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरीके से करना है। तर्जन्य अनामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रयो, इसमें हम तर्जनी और अनामिका को मिला करके दोनों कानों जो हमारे होल है ना, ये छिद्र हैं, इसको हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, नित्यम अभ्यास योगेन तदांतरम प्रकाशयेत। कर्णरंध्र धौती से बेनिफिट क्या बताया गया है कि जब आप तर्जनी और अनामिका से इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपको नाद सुनाई देता है। तो किस धौती से नाद सुनाई देता है, कर्णरंध्र धौती से
योगी को नाद सुनाई देने लगता है जब वो इस प्रैक्टिस को करता है। ठीक है जी। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या आपको मिली कि इससे नाद सुनाई देती है, कड़रन धोती से नाद सुनाई देता है, और इसमें हम तर्जनी और अनामिका फिंगर्स को यूज करते हैं कान की सफाई करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है हमारा कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती के टेक्निक क्या है उसे भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बताया गया है वृद्धांगुष्ठेन दक्षिणे मार्जयेत बाल रंध्रकरम एव अभ्यासेन योगेन कफ दोष निवारयेत नाड़ी निर्मलता याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दीवांते च दिने दिने। तो बताया गया है कपाल रंध्र धौती को कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटना है। जो आपके राइट हैंड के फिंगर्स हैं आपको ऐसे समेटना है। समेट लिया आपने और आपको कप शेप बनानी है। कप शेप बना लिया। अब आपको इसमें पानी लेना है, हल्का सा पानी ले लिया अपने कप में। अब आपकी जो कपाल रंध्र है, यहाँ पे जो कपाल रंध्र है, जो ब्रह्म रंध्र है, आपको यहाँ पे थपकी देनी है। तो इस प्रकार से आपको थपकी देनी। कैसे? मसाज द फोरहेड with the right hand thumb. With this type of practice one is revealed of कफ दोषा। ये क्या करता है? कफ दोष को दूर करता है। जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, आपने क्या किया, अपने उंगलियों को समेट लिया और आपने कप शेप बना करके आपने अंजलि मुद्रा बनाई, इसमें पानी ले लिया और आपने अपने कपाल रंध्र यानी कि ब्रह्म रंध्र के पास आपने रखा और आप थपकी दे रहे हैं। तो इससे कफ दोष दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो कपाल रंध्र से कौन क्या क्या चीजें बताई गई यहाँ पे? आपकी घृण संहिता में कफ दोष का निवारण होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका निद्रांते भोजनांते च दीवांते च दिने दिने। कब कब करना है? निद्रा की समाप्ति पे, एंड ऑफ स्लिप। फिर भोजन के बाद क्या बताते हैं? आफ्टर फूड, एंड निद्रा के पहले तथा दिन की समाप्ति पे, बिफोर स्लिप और बिफोर क्या बताया गया है कि दिन की समाप्ति, सनसेट, यू हैव टू परफॉर्म कपाल रंध्र धौती। निद्रांते भोजनांते दीवांते च दिने दिने। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है आपकी लाइन, आपको इस पे ध्यान देना है। अंजलि मुद्रा से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि क्या है, जरूरी है। कपाल रंध्र से कफ दोष का निवारण होता है, नाड़ियां निर्मल होती हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है, और कब कब करना है? निद्रांते, नींद के अंत में, नींद की समाप्ति पर, भोजनांते, भोजन के बाद, फिर दीवांते, निद्रा के पहले, और च दिने दिने, दिन की समाप्ति पे आपको क्या करना है? कपाल रंध्र धौती करनी है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे जी। अच्छा ठीक है। तो अभी पूजा जी बताएंगी कि दंत मूल धौती में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम। सर दंतमूल में बेसिकली 5 प्रकार की धोतियां हैं हमारे पास। धोती में 5 प्रकार की धोती है: दंतमूल, जीवामूल, कनरंध 1, कनरंध 2 और कपाल रंध्र। दंतमूल धोती में खादिर के जो रस होता है ना सर, उससे दांतों का मंजन करते हैं जिससे हमारी दांतों की रक्षा हो सके। और जीवामूल मिट्टी का भी यूज करते हैं क्या सर? विशुद्ध मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। हाँ, संदीप जी बताएंगे कि कौन सी प्रैक्टिस जो है निद्रांते भोजनांते च दीवांते च दिने दिने, कौन सी प्रैक्टिस हम करते हैं? कपाल रंध्र धौती। वेरी गुड। श्रुति जी, नाद की अनुभूति किसमें होती है? फीलिंग ऑफ साउंड लाइक नाद, इस टाइप्स ऑफ धौती
रिलेटेड टू? श्रुति जी? सर जी सर, कर्ण कर्ण की जो धोती होती है, कर्ण मूल। वेरी गुड। ओके, जीवामूल धोती से किस दोष का निवारण होता है? वात, पित्त, कफ? कफ सर। कफ।